We all know we are living in the end days. हम सभी जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। By seeing the things what are happening around us, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसे देख we can come to the conclusion that almost all the signs the Lord has foretold, they are fulfilling very rapidly. कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रभु ने जो भी संकेत पहले से बताए हैं वे बहुत तेजी से पूरे हो रहे हैं। See the signs in the nature. प्रकृति में संकेतों को देखें। You may call rains or famines or storms, whatever you call. आप इसे बारिश कहें, अकाल कहें, तूफान कहें, जो भी कहें। Today the frequency is so much. See, almost every day we are hearing. आजकल इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है। देखिए, लगभग हर दिन हम सुनते हैं। Natural signs are being fulfilled. प्राकृतिक संकेत पूरे हो रहे हैं। What about the moral signs? नैतिक संकेतों के बारे में क्या? We all know the morality is going down and down, low and low nowadays. हम सभी जानते हैं कि आजकल नैतिकता नीचे और नीचे जा रही है, निम्न और निम्न। What the Lord foretold, the days will be like the days of Lot. यही प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, दिन लूत के दिनों की तरह होंगे। And even the spiritual signs. और आध्यात्मिक संकेत भी। Wherever we go, in spite of so many meetings, so many special meetings, and with so much messages on the media, when we see spiritually people are going down and down, and spiritual degradation is also seen. जहां भी हम जाते हैं, इतनी सारी बैठकों, इतनी सारी विशेष बैठकों और मीडिया पर इतने सारे संदेशों के बावजूद जब हम देखते हैं कि आध्यात्मिक रूप से लोग नीचे गिर रहे हैं और आध्यात्मिक पतन भी देखा जाता है। Natural signs are fulfilled. प्राकृतिक संकेत पूरे हो रहे हैं। Moral signs are just they are going down and down. आध्यात्मिक पतन या गिरावट देखी जाती है। Spiritual degradation or declension is seen. आध्यात्मिक पतन भी देखा जाता है। And also you see the technology signs. और आप प्रौद्योगिकी के संकेत भी देखते हैं। Daniel also prophesied in Daniel chapter 12. दानियेल ने भी अध्याय 12 में भविष्यवाणी की है। In the end days, the technology will increase. अंत के दिनों में तकनीक बढ़ेगी। See how many electronic gadgets have come. देखिए कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए हैं। Everything, the things of the whole world can be seen in a small piece of cell phone. सारी दुनिया की सारी चीजें एक छोटे से सेल फोन के टुकड़े में देखी And जा सकती हैं। technological signs are being fulfilled. और तकनीकी संकेत पूरे हो रहे हैं। Also see the political sign. और राजनीतिक संकेत भी देखिए। What is happening in Israel? इसराइल में क्या हो रहा है? We all know they are God's people. हम सभी जानते हैं कि वे परमेश्वर के लोग हैं। And Israel is a compass to every one of us. और इसराइल हम सभी के लिए एक दिशा सूचक है। Whatever is happening in Israel, it is directly linked with the word of God and also linked with the second coming of Christ. इसराइल में जो कुछ भी हो रहा है वह सीधे परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है और मसीह के दूसरे आगमन से भी जुड़ा हुआ Every है। day we are seeing what is happening in Israel. हम हर रोज देख रहे हैं कि इसराइल में क्या हो रहा है। How the wars are being carried out. युद्ध कैसे चलाए जा रहे हैं। So when we see all these things, we can come to the conclusion the Lord is at the door. इसलिए जब हम ये सब देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रभु दरवाजे पर हैं। The time is so short. समय बहुत कम है। Satan and his agents are working day and night because they know that the time is short. शैतान और उसके एजेंट दिन रात काम कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय कम है। You and I, आप और मैं being the children of God, परमेश्वर की संतान होने के नाते we are also having a desire, I fully believe, to work effectively for the Lord in these last days. हम भी इन अंतिम दिनों में प्रभु के लिए प्रभावी ढंग से काम करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। We can see our young people, our sisters going for open air to so many places. हम अपने नौजवानों, अपनी बहनों को खुली हवा में कई जगहों पर जाते हुए देख सकते Fully हैं। knowing well they have to face problems. यह अच्छी तरह जानते हुए कि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता Day है। before yesterday, our sisters were taken to jail. Of course, later they are released in Bihar. परसों हमारी बहनों को जेल ले जाया गया। बेशक बाद में उन्हें बिहार में रिहा कर दिया Why they are going? वे क्यों जा रहे हैं? A desire. Time is short. I have to effectively work for the Lord. इच्छा का समय कम है, मुझे परमेश्वर के लिए प्रभावी ढंग से काम करना है। Probably as young people, almost 60% people are young people sitting here now. संभवतः युवा लोगों के रूप में लगभग 60% लोग अब यहाँ बैठे हैं। As young people, युवा लोग you also may be having a desire to stand for the Lord. Yes, in this end day. के रूप में आप भी प्रभु के लिए खड़े होने की इच्छा रखते होंगे। हाँ, इन अंतिम दिनों में। But many times, लेकिन कई बार by seeing our shortcomings, we will be discouraged. अपनी कमियों को देखकर हम निराश हो जाते हैं।
I have shared this message few months ago. मैंने कुछ महीने पहले यह संदेश साझा किया But था, when I prayed, the Lord has given the same burden. लेकिन जब मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने वही So बोल some दिया। of the people, they will be discouraged by seeing their own shortcoming. इसलिए कुछ लोग अपनी कमियों को देखकर हतोत्साहित हो जाते हैं। When they see a brilliant messenger, जब वे एक शानदार संदेशवाहक को देखते हैं I cannot speak like that man. तो मैं उस आदमी की तरह नहीं बोल They सकता। see a beautiful singer. जब वे एक सुंदर गायक को देखते So हैं God has given him a wonderful talent. तो परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत प्रतिभा दी। I cannot sing like that. मैं ऐसा नहीं गा सकता। By comparing ourselves with the other people, we will be discouraged all the time. दूसरों से अपनी तुलना करके हम हमेशा निराश ही रहेंगे। This afternoon, आज दोपहर में I want to encourage you. The Lord wants to encourage you and me through the life of Moses. आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु मूसा के जीवन के माध्यम से आपको और मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं। Why? क्यों? He was not much different from us. वह हमसे बहुत अलग नहीं था। A man who faced difficulties of life. एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन की कठिनाइयों का We सामना all know even at the time of his birth, the sword was hanging on his neck. हम सब जानते हैं कि उनके जन्म के समय भी उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई थी। When he was kept in the river Nile, oh, death was around him. जब उन्हें नील नदी में रखा गया तो मौत उनके इर्द गिर्द थी। So he is like us. तो वह हमारे जैसे ही। Not only that, इतना ही in नहीं, his life he experienced unfair treatment in life. अपने जीवन में उन्हें कई बार अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा। We talk about the burning bush experience when he was 80 years of age. हम बात करते हैं 80 साल की उम्र में जलती हुई झाड़ियों के अनुभव की। At Horeb, वह भयानक था, but I want to put it like this. लेकिन मैं इसे इस तरह कहना चाहता हूँ। Every day is a burning bush experience in the life of Moses. मूसा के जीवन में हर दिन एक जलती हुई झाड़ी का अनुभव था। Life was burning, problem after problem, running after running, but the bush is not consumed. जीवन में एक के बाद एक समस्याएं जल रही थीं, एक के बाद एक भाग रही थीं, लेकिन झाड़ी नष्ट नहीं हुई। Desert wanderings for 40 years before he became the leader. मुखिया बनने से पहले वे 40 साल तक भटकते रहे। You see the life of Moses, life-threatening scenarios you can see in his life. आप मूसा का जीवन देखते हैं, उसके जीवन में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले परिदृश्य देखते हैं। What does it mean? इसका क्या मतलब है? There are so many shortcomings in his life, उसके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, but लेकिन when he chose God and obeyed the call of God, जब उसने परमेश्वर को चुना और उसकी आज्ञा का पालन किया he became the God's man for that particular hour. तो वह उस विशेष घंटे के लिए ईश्वर का आदमी बन गया, At that particular time. उस विशेष समय पर। And the things what he has achieved, it is beyond our human imagination. और जो कुछ उसने हासिल किया है वह हमारी मानवीय कल्पना से परे है। When you see the life of Moses, जब आप मूसा के जीवन को देखते is it हैं easy to stand before तो Pharaoh? क्या फिरौन के सामने खड़ा होना आसान Can है? an ordinary man, a Hebrew, can he stand before the Egyptian Pharaoh? क्या एक साधारण आदमी एक हिब्रू मिस्र के फिरौन के सामने खड़ा हो सकता है? Is it easy to lead lakhs of Israelites out of Egypt? क्या लाखों इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकालना आसान है? How many great things this man have done? इस आदमी ने कितने महान काम किए हैं। Spent 40 days on the mountain top and he brought the law from God. उसने पहाड़ की चोटी पर 40 दिन बिताए और वह परमेश्वर से कानून लेकर आया। Is it easy to build the tabernacle in the wilderness, the mobile tent, according to the plan and design of God? क्या जंगल में तंबू परमेश्वर की योजना और डिजाइन के अनुसार बनाना आसान है? When we built our own houses with all our technology, the wall will not be vertical, it will be little bit inclined also. जब हम अपनी सारी तकनीक के साथ अपने घर बनाते हैं तो दीवार खड़ी नहीं होगी, यह थोड़ी झुकी हुई भी होगी। Some wankara will be there. कुछ वंकारा वहां होंगे, But it is not allowed in the case of tabernacle. According to the plan and design of God, it is to be built. लेकिन तंबू के मामले में इसकी अनुमति नहीं है। परमेश्वर की योजना और डिजाइन के अनुसार इसे बनाया जाना है। And God used him to write the very first 5 books of the Bible. और परमेश्वर ने बाइबल की पहली 5 पुस्तकें लिखने के लिए उनका इस्तेमाल The किया। Holy Spirit wanted to write the word of God. जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन लिखना चाहता था He can call Abraham. तो वह अब्राहम को बुला He can सकता था, call Enoch. वह हनोक को बुला सकता Whom था, he called. लेकिन उसने किसे He called बुलाया? Moses. उसने मूसा को। Not one book. एक किताब नहीं, 5 books. 5 किताबें। Not one wonder. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। See, on the mountain Tabor in the New Testament, नए नियम में थबोर के पहाड़ on the पर, mountain of transfiguration. रूप परिवर्तन के पहाड़ पर, Yeah, when God wanted to represent the people who are dead and risen again, God called Moses there in glory. जब परमेश्वर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहता था जो मर चुके हैं और फिर से जी उठे हैं, तो परमेश्वर ने मूसा को महिमा में वहां बुलाया। The first person who is called as man of God in the Bible is Moses. बाइबल में परमेश्वर का आदमी कहलाने वाला पहला व्यक्ति मूसा है। God has used in
in a wonderful way. परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। Even till today, there is no great leader like Moses. आज तक मूसा जैसा महान नेता कोई नहीं हुआ। He is a leader, he is a lawgiver, he is a legislator. वह एक नेता है, वह एक कानून निर्माता है, वह एक विधायक है। But in the beginning, लेकिन शुरुआत में he always told so many shortcomings of his life. उसने हमेशा अपने जीवन की बहुत सारी कमियां बताई। Exodus chapter 7, निर्गमन अध्याय verse 7. पद्य 7। And Moses was 80 years old, and Aaron 80 years old, when they spake unto Pharaoh. और जब मूसा ने फिरौन से बात की तब वह 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। Why God waited up to 80 years? परमेश्वर ने 80 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों की? We all know Moses' life can be divided into 3 parts, 40, 40, 40. हम सभी जानते हैं कि मूसा के जीवन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 40, 40, 40। The first 40 is in Egypt, पहले 40 वर्ष मिस्र में, second 40 is in Midian, दूसरे 40 वर्ष मिद्यान में and the last 40 years leading the people of God. और अंतिम 40 वर्ष परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व करते हुए। Some of the people questioned, कुछ लोगों ने सवाल किया, why God waited up to 80 years? Why can't God call him at the age of 60 or so? परमेश्वर ने 80 साल तक इंतजार क्यों किया? परमेश्वर उसे 60 या उससे ज्यादा की उम्र में क्यों नहीं बुला सकते? There is a link between Moses and 80. मूसा और 80 के बीच एक संबंध है। What is that? वह क्या है? In Psalm 90 verse 10, भजन 90 की पद्य 10 में what Moses is writing, this is the prayer of Moses. जो मूसा लिख रहा है, यह मूसा की प्रार्थना है। The days of our years are 80 years and 10, and by the reason of strength they will be 80 years. हमारे वर्षों के दिन 70 साल हैं और ताकत के कारण वे 80 साल होंगे। According to the opinion or idea of Moses, मूसा के मत या विचार के अनुसार a person can live for 70 years एक व्यक्ति 70 साल तक जीवित रह सकता है। if he is very strong. अगर वह बहुत ताकतवर He will है live तो for 80 years. वह 80 साल तक जीवित रहे। So if he is having more strength इसलिए अगर उसके पास ज्यादा ताकत है after 80 years, तो 80 साल के बाद strength at all. उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं Why रहेगी। God waited for 80 years? परमेश्वर ने 80 साल तक इंतजार क्यों किया? Moses, you cannot do my work with your own strength. मूसा, तुम अपनी ताकत से मेरा काम नहीं कर सकते। You are telling that for 70 years a person can live. तुम कह रहे हो कि 70 साल तक कोई व्यक्ति जीवित रह If सकता he is a है। very strong man, he will live for 80 years. अगर वह बहुत ताकतवर आदमी है तो वह 80 साल तक जीवित रहेगा। And after 80 years, I will pour my resurrection power. With that power, you have to do my work. और 80 साल बाद मैं अपनी पुनरुत्थान की शक्ति डालूंगा। उस शक्ति से तुम्हें मेरा काम करना है। God answered Moses in his own terminology. परमेश्वर ने मूसा को अपनी शब्दावली में उत्तर दिया। Oh, what does it show? इससे क्या पता चलता है? Age is, see, you are never too old to work for God. Age is no bar. परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आपकी उम्र कभी भी बहुत बड़ी नहीं होती। Today, some of the old people will tell. उम्र कोई बाधा नहीं है। आज कुछ बुजुर्ग लोग बताएंगे, Of course, physically they are weak. बेशक शारीरिक रूप से वे कमजोर हैं, But, लेकिन देख, see, we are tired and we cannot do anything. हम थके हुए हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। That is the time when God wants to pour his resurrection power in you to work for the Lord. यही वह समय है जब परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की शक्ति को आप में डालना चाहता है ताकि आप प्रभु के लिए काम कर सकें। Yes. From 80 years onwards, God used him for the remaining 40 years. 80 साल से लेकर बाकी 40 साल तक परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। Moses' great contribution in the ministry is the last 40 years of his life. सेवकाई में मूसा का सबसे बड़ा योगदान उसके जीवन के आखिरी 40 साल है। You may be young or old. आप युवा या बूढ़े हो सकते हैं। God can use a child Samuel and God can use a old Moses. परमेश्वर एक बालक शमूएल का उपयोग कर सकता है और एक वृद्ध मूसा का भी। So don't get discouraged by seeing your age, whether you are a young man or old man. Be available unto the Lord. इसलिए अपनी उम्र देखकर निराश मत होइए, चाहे आप युवा हों या वृद्ध, प्रभु के लिए उपलब्ध रहें। Secondly, दूसरी बात, first of all, age is no bar. सबसे पहले उम्र कोई बाधा नहीं है। Young people, I am telling, मैं युवाओं से कह रहा हूँ, your life in the hands of God. अपना जीवन ईश्वर के हाथों में सौंप You दो। need not wait up to 80 years. God used child Samuel also. आपको 80 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने एक बालक शमूएल का भी इस्तेमाल किया। Bible is filled with wonderful characters and examples who were used by the Lord, both boys and girls in their young age. बाइबल अद्भुत चरित्रों और उदाहरणों से भरी हुई है जिनका इस्तेमाल प्रभु ने किया, लड़के और लड़कियां दोनों। So God used Moses in spite of his age. इसलिए परमेश्वर ने मूसा को उसकी उम्र के बावजूद इस्तेमाल किया। And secondly, दूसरी बात, many times we will see our failures also. कई बार हम अपनी असफलताएं भी देखेंगे। Though Moses lived in Egypt, he never forgot that he is a Hebrew because of his mother's training. हालांकि मूसा मिस्र में रहता था, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह अपनी माँ की शिक्षा के कारण एक हिब्रू है।
I need not explain that context. मुझे उस संदर्भ को समझाने की जरूरत नहीं। When an Egyptian was beating a Hebrew, जब एक मिस्री एक हिब्रू को पीट रहा था immediately he thought, तो उसने तुरंत सोचा, oh, this is what my mother taught. यह तो मेरी माँ ने सिखाया है, How to deliver the Hebrews. मुझे इब्रानियों को छुड़ाना है। Immediately he went and fought with that man. वह तुरंत गया और उस आदमी से लड़ा And he murdered that man in the daylight. और उसने दिन के उजाले में उस आदमी की हत्या कर दी। Others came to know about it. दूसरों को भी इसके बारे में पता चला। See, at the time of table, we were hearing about wisdom. देखिए, तालिका के समय हम बुद्धि के बारे में सुन रहे थे। Wonderful thing. अद्भुत बात है। If you go through the book of Proverbs, अगर आप नीति वचन की किताब पढ़ेंगे knowledge and wisdom, two things are recorded. Knowledge, televi, and wisdom, jnanam. तो उसमें ज्ञान और बुद्धि दो बातें दर्ज हैं। ज्ञान ही बुद्धि है और बुद्धि ही ज्ञान है। Charles Swindoll, a man of God from Texas, he said like this. टेक्सास के एक ईश्वरीय सेवक चार्ल्स वेंडेल ने ऐसा ही कहा था। He is a man of God. वह ईश्वर का आदमी है। Timing is as important as action. समय का ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। That is where wisdom and knowledge will come in. यहीं पर बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होगी। Knowledge, televi will tell you what to do. ज्ञान बुद्धि आपको बताएगी कि क्या करना है, But wisdom will tell you when to do. लेकिन बुद्धि आपको बताएगी कि कब क्या करना What है। does it mean? इसका क्या मतलब है? He used his knowledge, not wisdom. उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, बुद्धि का नहीं। What he did is right. उसने जो किया वह सही है, But the time when he did is wrong. लेकिन जिस समय उसने ऐसा किया वह गलत था। So what is the result? तो नतीजा क्या हुआ? He ran away. वह भाग गया। Brothers and sisters, भाइयों और that is a बहनों, big failure. यह एक बड़ी विफलता Yeah, है। God got wonderful plans for this man's life. परमेश्वर ने इस आदमी के जीवन के लिए अद्भुत योजनाएं But बनाई he थी। murdered an Egyptian. अब उसने एक मिस्री की He हत्या ran की। away with fear. वह डर के मारे भाग गया। Now the question will come. अब सवाल यह उठेगा Can God use a murderer? कि क्या परमेश्वर किसी हत्यारे का इस्तेमाल कर सकते हैं? Sometimes you will be having this question. कभी कभी आपके मन में यह सवाल आता होगा, I committed that sin 5 years ago. मैंने वह पाप 5 साल पहले I किया, did this sin 2 years ago. मैंने यह पाप 2 साल पहले किया। Can God use me? परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर सकता I है? am a drug addict. Can God use me? मैं नशे का आदी हूँ, क्या परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकता है? God went to a murderer who was there in the wilderness after 40 years. परमेश्वर 40 साल बाद जंगल में रहने वाले एक हत्यारे के पास गया। Many times we hide ourselves behind our failures. कई बार हम अपनी असफलताओं के पीछे खुद को छिपा लेते हैं। We assume that God cannot use us. हम मान लेते हैं कि परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं कर सकता। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, especially young people, खासकर युवा लोगों, don't limit God and God's power. परमेश्वर और परमेश्वर की शक्ति को सीमित मत करो। In the Bible, we can see many failures of great men of God. बाइबल में हम परमेश्वर के महान पुरुषों की कई असफलताओं को देख सकते हैं। Noah failed, Abraham failed, Isaac failed, Jacob failed, and Moses failed, Peter failed, not one or two. नूह असफल हुआ, अब्राहम असफल हुआ, इसहाक असफल हुआ, याकूब असफल हुआ, मूसा असफल हुआ, पतरस असफल हुआ। एक या That दो doesn't नहीं। mean that I am giving license to commit some sin. इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई पाप करने की छूट दे रहा हूँ, But confess it. लेकिन कबूल करें, Restart your life. अपना जीवन पुनः आरंभ करें। Yeah, that Scottish preacher Alexander White said like this. स्कॉटिश प्रचारक अलेक्जेंडर व्हाइट ने ऐसा ही He is कहा। a great man of God. वह ईश्वर का एक महान व्यक्ति A है। victorious Christian life is a series of new beginning. एक विजयी मसीही जीवन नई शुरुआत की एक श्रृंखला है। So I commit mistake. इसीलिए मैं गलती करता हूँ, I may hurt somebody. मैं किसी को चोट पहुंचा सकता हूँ। So as human beings, many times, though we don't want, we will err. इसलिए मनुष्य होने के नाते कई बार, हालांकि हम नहीं चाहते, हम गलती कर बैठते हैं, But लेकिन you can restart. आप फिर से शुरू कर सकते हैं। Failure is not final in the life of a believer. आस्तिक के जीवन में असफलता अंतिम नहीं होती, But many people, लेकिन बहुत से they लोग commit some mistake. कुछ गलतियां कर बैठते Finish हैं। my life is over. मेरी जिंदगी खत्म हो गई, God cannot use me. परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, Everything is gone. सब कुछ खत्म हो My life is गया, waste. मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। No. नहीं, If Moses thought like that, अगर मूसा ने ऐसा सोचा होता today probably we would not be speaking about Moses. तो शायद आज हम मूसा के बारे में बात नहीं कर रहे होते। Don't hide yourself behind your failure. अपनी असफलताओं के पीछे खुद को मत छिपाइए। Great men of God committed grave mistakes, but they confessed, they were restored, and once again they ran in the track. परमेश्वर के महान लोगों ने गंभीर गलतियां की, लेकिन उन्होंने कबूल किया, उन्हें बहाल किया गया और एक बार फिर दौड़ने लगे। In spite of years, God can use you. सालों के बावजूद परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है, Your failures also. आपकी असफलताओं का भी।
Third thing what we see in the life of Moses. तीसरी बात जो हम मूसा के जीवन में देखते हैं, Time and again he started telling excuses. बार बार उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। Why? क्यों? Generally, why will tell the excuse? आमतौर पर मैं बहाना क्यों When बताऊंगा? mummy says something, oh no, I don't want to do. जब मम्मी कुछ कहती हैं तो मैं नहीं करना चाहता। I don't want to come out of my comfort zone. मैं अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर नहीं आना चाहता। I am seeing some match on the TV, for example. उदाहरण के लिए मैं टीवी पर कोई मैच देख रहा हूँ, Mummy asked me to do something. मम्मी ने मुझे कुछ करने को कहा And immediately what you will say? और तुरंत क्या No, कहोगे? I will not do. नहीं, मैं नहीं करूंगा। पेट में दर्द हो जाएगा। Why? क्यों? Not willing to do. करने को तैयार नहीं। Don't want to come out of your comfort zone. आप अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर नहीं आना चाहते, We will never venture out. हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे। So when God wanted Moses, he also started telling excuses because for the last 40 years he settled at Horeb. इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसने भी बहाने बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि पिछले 40 सालों से वह होरेब में बसा हुआ That's था। why in Exodus 3:11, इसीलिए निर्गमन 3:11 में what he says, वह कहता Who है, am I, Lord? मैं कौन हूँ प्रभु? I am the wrong choice. मैं गलत चुनाव हूँ, I am not having any talent. मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, God calls you. जब परमेश्वर आपको बुलाता है Many times we have तो heard. हमने कई बार सुना है, He wants your availability, not your eligibility or your efficiency. वह आपकी उपलब्धता चाहता है, आपकी योग्यता या आपकी दक्षता नहीं। He doesn't want your ability, your availability God wants. वह आपकी योग्यता नहीं चाहता, आपकी उपलब्धता चाहता है। If you go through the scriptures, यदि आप पवित्र पुस्तकों को God used everybody. देखें तो परमेश्वर ने सभी का उपयोग किया। Blind people, अंधे लोग, lame people, लंगड़े लोग, lepers. कोढ़ी, But only one kind of people he has not used. लेकिन सिर्फ एक तरह के लोगों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। Who? कौन? Lazy fellows. आलसी लोग। Lazy fellows he never used. आलसी लोगों का उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। Even Gideon with fear, he was in the house. We all know the situation. गिदोन भी डर के मारे घर में था। हम सब जानते हैं कि यह स्थिति क्या थी। God used him. परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल He किया। started telling excuses. Who am I? Are you telling excuse today? वह बहाने बनाने लगा, मैं कौन हूँ? क्या आज बहाने बना रहे हो? Are you telling that I am not educated? क्या तुम कह रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं I do हूँ? not know much about the मैं Bible. बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं What the जानता। Samaritan woman know? कौन सी सामरी स्त्री जानती है? And what that demon possessed man in gathering is what Bible he knew? और उस दुष्टात्मा ने मनुष्य को क्या ग्रस लिया? कौन सी बाइबल वह जानता था? Lord, who am I? प्रभु, मैं कौन हूँ? Never say like that. ऐसा कभी मत कहो। When God calls you, जब परमेश्वर तुम्हें बुलाता है, God fully knowing about you, he will call you. परमेश्वर तुम्हारे बारे में पूरी तरह से जानता है तो वह तुम्हें You need बुलाएगा। not tell that I am so and so to God. God knows you before the foundation of the world. तुम्हें परमेश्वर को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा वैसा हूँ। परमेश्वर तुम्हें दुनिया की नींव रखने से पहले से जानते हैं। In chapter 4 verse 10, what he says? अध्याय 4 की पद्य में वह क्या कहता है? Lord, I am a stammerer. हे प्रभु, मैं हकलाने वाला हूँ, I cannot speak. मैं बोल नहीं सकता। Is it right? क्या यह सही है? According to me, मेरे हिसाब से it is an excuse. यह एक बहाना है। Why? क्यों? About Moses, Stephen said in Acts 7:22. मूसा के बारे में स्टीफन ने प्रेरितों के काम 7:22 में कहा। What he is telling? वह क्या कह रहा है? Moses is skillful in words and deeds. मूसा शब्दों और कामों में कुशल है। Harpari. पढ़ाना, शब्दों में पढ़ाना, कहाँ? I cannot speak. मैं बोल नहीं सकता। क्या यह बहाना नहीं है? He never wanted to go. वह कभी जाना ही नहीं चाहता One था। side, Stephen is telling he is skillful in word. एक तरफ स्टीफन कह रहा है कि वह शब्दों में निपुण है, But here, लेकिन यहाँ I am stammerer. मैं हकलाने वाला I हूँ, cannot speak. मैं बोल नहीं सकता। So don't tell excuses. इसलिए बहाने मत बनाओ। God knows what are you. परमेश्वर जाने तुम क्या हो, And who am I? मैं कौन हूँ। Knowing fully well about us, he will call us for a particular ministry. हमारे बारे में पूरी तरह से जानते हुए वह हमें एक विशेष सेवकाई के लिए To बुलाएगा। be frank, you do not know about you, I do not know about me, but God knows about every one of us. सच कहूँ तो आप अपने बारे में नहीं जानते, मैं अपने बारे में नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर हम सब के बारे में जानते हैं। You do not know what will happen the next moment. God knows everything, knows the ending from the beginning. Isaiah 46:10. आप नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, वह शुरू से ही अंत को जानता है। यशायाह 46:10। Don't get discouraged by seeing your drawbacks or shortcomings. अपनी कमियों या कमियों को देखकर निराश न हो। We are living in the end days. हम अंतिम दिनों में जी रहे Time हैं। is short. समय कम है, Let us go out. चलो बाहर चलते हैं। Your life in the hands of God. अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दो।
Whatever may be your age, God can use. आपकी उम्र चाहे जो भी हो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है। How many times you failed, God can use you provided if you confess. आप कितनी बार असफल हुए, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आप कबूल करें। In spite of your excuse. आपके बहाने के बावजूद Only 5 things I'll tell. मैं सिर्फ 5 बातें बताऊंगा, 10 minutes only. केवल 10 The मिनट। fourth thing, चौथी बात, there was a perpetual sin in the life of Moses. मूसा के जीवन में एक निरंतर पाप था। Every one of us are having weaknesses. हम सभी में कमजोरियां हैं। Some people will say, I am not having any weakness. कुछ लोग कहते हैं मेरी कोई कमजोरी नहीं। What is your weakness? आपकी कमजोरी क्या Your है? weakness is you do not know your weakness. आपकी कमजोरी ये है कि आपको अपनी कमजोरी का पता You are नहीं। so blind. आप इतने अंधे हैं। So brothers and sisters, तो भाइयों और बहनों, I am having many weaknesses. मुझ में बहुत सी कमजोरियां हैं। Every one of us are having weaknesses. हम में से हर एक में कमजोरियां हैं। And though we want to leave it, that will not leave us. हम इसे छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये हमें नहीं छोड़ता। What is that weakness? वह कमजोरी क्या What is है? that perpetual sin? वह निरंतर पाप क्या है? One thing is repeated time and again. Time and again you have taken yesterday a decision, I don't want to do it. Today you will start doing again. एक बात बार बार दोहराई जाती है। आपने कल एक निर्णय लिया है, मैं इसे नहीं करना चाहता। आज से आप फिर से शुरू What करेंगे। is the weakness in the life of Moses? मूसा के जीवन में कमजोरी क्या है? Anger. क्रोध। Somebody said like this. किसी ने यूं कहा है, The weakest point in the meekest man is his greatest anger. सबसे नम्र व्यक्ति की सबसे कमजोरी उसका सबसे बड़ा क्रोध है। Many times he became angry. कई बार वह क्रोधित हो गया। When Moses, he is the meekest man, no doubt about. जब मूसा, वह सबसे नम्र व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। See, he is the meekest man. वह सबसे नम्र व्यक्ति है। 3 times, 3 बार, 3 incidents. 3 घटनाएं। One thing already we have seen, killing a Hebrew, killing the Egyptian. एक बात तो हम पहले ही देख चुके हैं, मिस्री को मारना। When 2 people are fighting, he can go in between. No, you should not wait. You go to your home, you go to your home, you can tell. जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं तो वो बीच में जा सकता है, नहीं तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम अपने घर जाओ। That is better also. यह भी बेहतर है। But what this man has done, लेकिन इस आदमी ने क्या किया है? more than the person who was beaten, his BP raised. जिस व्यक्ति को पीटा गया था उससे ज्यादा उसका बीपी बढ़ा हुआ है। And what one, he killed that man. उसने उस आदमी को मार डाला। The anger. क्रोध। Second time, दूसरी बार, when he came down from Sinai, जब वह सिनाई से नीचे आया, Aaron and all these people, they were dancing around the golden calf. हारून और ये सभी लोग वे सोने के बछड़े के चारों ओर नाच रहे थे। What an anger. कितना क्रोध था। He broke those tablets. उसने उन पट्टियों को तोड़ दिया। He forgot it is there. They are written by God. वह भूल गया कि यह परमेश्वर ने लिखा है, Because time is not there. क्योंकि समय नहीं है। See, I am the golden calf, it is written in the Bible. He put it in the fire and he made it powder. सोने का बछड़ा बाइबल में लिखा है, उसने उसे आग में डाला और उसका चूर्ण बना दिया। If you ask the physics students what is the boiling temperature of gold, अगर आप भौतिकी के छात्रों से पूछें कि सोने का उबलने का तापमान कितना होता है, very high. बहुत ज्यादा। I do not know how much temperature is there in that fire. That temperature is there in Moses. मुझे नहीं पता कि उस आग में कितना तापमान होता है, वह तापमान मूसा में है। He burnt that golden calf. उसने उस सोने के बछड़े को जला दिया। Third time, तीसरी बार, became very angry at Meribah. वह मरीबा पर बहुत क्रोधित हुआ। God told you speak to the rock. परमेश्वर ने तुम्हें चट्टान से बात करने को But what he कहा, has done? लेकिन उसने क्या किया I है? tell you, brothers and sisters, मैं तुमसे कहता हूँ भाइयों और बहनों, your perpetual sin will affect your own life. तुम्हारे निरंतर पाप तुम्हारे अपने जीवन को प्रभावित करेंगे। Unless you are careful. जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे, Yeah, हाँ, it will affect you only. यह केवल आप पर ही प्रभाव डालेगा। Why Moses could not enter the land of Canaan? मूसा कनान की भूमि में प्रवेश क्यों नहीं कर? God's plan is Moses to lead the people of God to Canaan. परमेश्वर की योजना है मूसा परमेश्वर के लोगों को कनान की ओर ले जाए। Even after his failure, Moses prayed for it. अपनी असफलता के बाद भी मूसा ने इसके लिए प्रार्थना की। God said no. परमेश्वर ने कहा नहीं। Why? क्यों? Don't think that God is not loving Moses. ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर मूसा से प्रेम नहीं करता। In the New Testament, he has taken him to Canaan. नए नियम में वह उसे कनान ले गया है। He is there on the Mount Tabor. वह ताबोर पर्वत पर है, But लेकिन to teach you and me a lesson. तुम्हें और मुझे सबक सिखाने के लिए Be careful about them. उनसे सावधान रहना। You cannot be an effective witness if you continually, going on in your perpetual sin. यदि आप लगातार पाप करते रहेंगे तो आप एक प्रभावशाली गवाह नहीं बन सकते। Bring it to God. इसे परमेश्वर के सामने ले God will आइए। help. परमेश्वर आपकी मदद करेगा। And finally, और अंत में another discouraging fact in the life of Moses. मूसा के जीवन का एक और निराशाजनक तथ्य, Betrayers. विश्वासघाती, His own people. उसके अपने लोग, Out of jealousy. ईर्ष्या के कारण।
when God is using mightily, जब परमेश्वर शक्तिशाली रूप से his first cousin, अपने चचेरे भाई का उपयोग कर रहा है, who is he? वह कौन है? Korah. कोरह। Korah's father Izhar Korah. and Moses' father Amram both are one brother. कोरह के पिता इसार और मूसा के पिता अमराम दोनों ही अपने भाई हैं, Father's brother's son. पिता के भाई का बेटा। God is using Moses and Aaron. परमेश्वर मूसा और हारून का उपयोग कर रहा है And immediately, और तुरंत। has God called you only? क्या परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हें Are बुलाया we है? not Levites? क्या हम लेवीय नहीं हैं? If some outsider, some enemy of the gospel throws a stone on me, I will be very happy. अगर कोई बाहरी व्यक्ति सुसमाचार का कोई दुश्मन मुझ पर पत्थर फेंकता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, Because I am called for that. क्योंकि मुझे इसके लिए बुलाया गया है। When my own brother, जब मेरा अपना भाई who is born again by the same precious blood of Christ, जो मसीह के उसी अनमोल लहू से फिर से जन्मा है, if he throws a stone that is more painful than the outside stone, अगर वह ऐसा पत्थर फेंकता है जो बाहर के पत्थर से ज्यादा दर्दनाक है, what is the reason? कारण क्या है? Jealousy. ईर्ष्या। But Moses is a meek man. लेकिन मूसा एक नम्र व्यक्ति है। In that particular situation, उस विशेष परिस्थिति में kept in the hands of God. उसने परमेश्वर के हाथों में रखा, So betrayers. इसलिए विश्वासघाती। The more you work for God, the more you will be betrayed. जितना अधिक आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे उतना ही अधिक आपके साथ विश्वासघात किया जाएगा। Lord Jesus Christ was betrayed by his own disciple. प्रभु यीशु मसीह को उनके ही शिष्य ने धोखा दिया था। Then it could happen to Lord Jesus Christ. After all, what are you and who am I? फिर यह प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हो सकता है। आखिर तुम क्या हो और मैं कौन हूँ? But thing is, लेकिन बात यह है, don't get discouraged. निराश मत होइए। When somebody says something against जब you, कोई आपके खिलाफ कुछ कहता है, somebody started scandalizing your कोई name, आपका नाम बदनाम करना शुरू कर देता don't है, get discouraged. निराश मत होइए। God wants to use you. परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता God है। wants to use you like Moses. परमेश्वर आपका उपयोग मूसा की तरह करना चाहता Tomorrow है। is not yours. कल तुम्हारा नहीं है, Today is yours. आज तुम्हारा है। Brothers and sisters, भाइयों और let us बहनों, stand for God. आइए हम परमेश्वर के लिए Let करें। us preach the gospel. आइए हम सुसमाचार का प्रचार Time करें। is short. समय कम है, Satan is working. शैतान काम कर रहा है, Why not we? हम क्यों नहीं? May God make you and me as the people like Moses. In spite of our shortcomings, we may be used by the Lord in these end days. भगवान आपको और मुझे मूसा जैसे लोग बना दे। हमारी कमियों के बावजूद इन अंतिम दिनों में प्रभु द्वारा हमारा उपयोग किया जा सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।